आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए प्लस मैथमेटिक्स में। Welcome you all in mathematics class. Today's topic is continuity. Now first of all you should know what is continuity. For that we will discuss it by the graph. If we consider this graph, say this is the graph, and at any point A, if you check the left hand limit and right hand limit. Now what do you mean by left hand limit? Left hand limit is like when x approaches A from left hand side, and right hand limit means when point x approaches the point from right hand side. Okay, one is known as left hand side limit, another one is known as right hand limit. Now in this case these two values are equal, this left hand limit and right hand limit, they are equal. So we can say in this case when left hand limit and right hand limit equal, then we can say limit exists. But you can see in the gap, the function is not continuous. ये ग्राफ जो है ये continuous नहीं है, there is a break. So we can say at this point a function is not continuous. But how you will check it mathematically? What we will do, at point A we will find the value of the function. Now function value can be anyone. ये भी हो सकती है value, it can be this value also. ऑलराइट, मीन्स इस ए पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। बट इस पॉइंट पर अगर ये वैल्यू इस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है, देन वी कैन से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बट इन दिस केस यू कैन सी ये वैल्यू जो है ये इक्वल नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दे आर इक्वल, बट they are not equal the value of the function at that point. And this type of discontinuity is known as removable discontinuity. Removable discontinuity. All right, now see another one. When you have a graph and graph is like this, in this case your limit does not exist. Why limit does not exist? Because your left hand limit and right hand limit at point A, they are not equal. You can see this is left hand limit and this is right hand limit, they are not equal. So we can say limit does not exist. When limit does not exist, this type of discontinuity is known as first type of discontinuity. Okay, another one is this one, in which one of the limit approaches to infinity. In this case you can see the left hand limit is going to infinity, so limit does not exist. Means when either left hand limit or right hand limit, one of the limit if approaches to infinity, then we can say limit does not exist, and this type is known as second type of discontinuity. ठीक है, this is known as second type of discontinuity. Now a function is said to be continuous if its left hand limit, right hand limit, they are equal. Moreover, they both are equal to the value of the function at that point. मतलब अगर हम ग्राफ से चेक करें एक ऐसा फंक्शन, अगर हम कंसीडर करें कोई पैराबोलिक ग्राफ, you can see at point A value of the function will be f of a. You can see from the graph. Moreover, at point A your left hand limit and right hand limit, they both are equal, and they both are equal to f of a. In this case we can say function is continuous. All right, and you must remember this is your working rule. Every time what we are going to do, we will find the limit and value of the function at the given point. If limit exists and value of the function at given point also equal to the limit, then we can say the function is continuous. All right, next it will be get clear from some examples. Your exercise question number 1, you are given that fx is equal to 5x minus 3. We need to prove
whether this function is continuous at x equal to 0 or x equal to minus 3. Now remember, I told you for continuity you need to check existence of limit and value of the function at that point. Now to check limit we have two methods. Either straightway we can do by limit x approaches to a, or we can check left hand limit and right hand limit. जनरली हम सिंपल डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, बट जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वी विल अप्लाई इन सम केसेस, जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको क्लियर होगा उससे. सो राइट नाउ लेट अस से मैं x इक्वल टू 0 पॉइंट पे चेक करना है. वी नीड टू चेक वेदर एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी योर fx इज 5x minus 3. If you replace this x by 0 you will get 5 into 0 minus 3 which is equal to minus 3. Okay, moreover if you consider the limit x approaches to 0 fx, now if you put x equal to 0 here you will get 5 into 0 minus 3 again equal to minus 3. So clearly you can see this, though both value are equal to minus 3 means limit also equal to minus 3, moreover value of the function is also minus 3. When these two values are equal then we can say this function is continuous at x equal to 0, because this limit and value of the function they are equal, so we can say the function is continuous at x equal to 0. Similarly we can check at x equal to minus 3. Another part is x equal to minus 3. So what we will do, we will again put the value of this in fx. You will get 5 into minus 3 in minus 3 minus 15 minus 3 minus 18. Similarly we will find the value of limit also. If you replace x by minus 3, it is not 3, it is minus 3. So if you put x equal to minus 3 you will get again minus 18. Again these two values are equal, so we can say the function is continuous at x equal to minus 3 when the two values are equal. Okay, so for x equal to 5 again you have to do in the same way जैसे आपने अभी 3 के लिए minus 3 के लिए किया, 0 के लिए किया. For x equal to 5 also you can do it yourself. Okay, now see question number 3. You are given that examine the continuity of the function f(x) equal to x minus 5. Now in this question you are not given any point. In the previous question if you remember you are given the point, you are given this point, this x equal to 0, x equal to minus 3, x equal to 5, but now you are not given that point. We need to check the continuity in general. So what we will do, we will consider it for the real number. For all real number we can take any value, and let us say that real number, any real number we will choose, either c, k, it's your choice. So in this case I'll choose k. At point k what will be the value of the function? If you replace this x by k, अगर इस x को k से replace करें you will get f of k equal to k minus 5. Alright, moreover if you find the value of limit x approaches to k, if you replace this x by k you will get k minus 5 here. Again these two values are equal. If these two values are equal then can we say function is continuous? Yes, we can say the function is continuous. Alright, similarly for the second part is given to you fx is equal to x square minus 25 where x is not equal to minus 5. Obvious है x cannot be equal to minus 5. x minus 5 के equal हो ही नहीं सकता because in the denominator we have x plus 5. If you put minus 5 here you will get minus 5 plus 5 0, and something upon 0 is not defined. So this denominator cannot be equal to 0 implies x cannot be equal to minus 5. Again in this case also you are not given any point where we need to check the continuity of the function. So what we will do, हमें कोई पॉइंट नहीं दिया यहाँ पर चेक करने के लिए, हम इसको इन जनरल चेक करेंगे. यहाँ पर मैं कोई और कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूँ, लेट अस से c कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, लेट अस से मैंने कोई पॉइंट c कंसीडर किया. ऑब्वियस है c कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 5 बिकॉज माइनस 5 पे ये क्या बन जाएगा, नो डिफाइन बन जाएगा. So we will take another value, say any point c. So at point c if you find the limit you will get this x square minus 25 by x plus 5. In numerator you can see it is a square minus b square which is a plus b into a minus b. This x plus 5 and x plus 5 get cancelled, you will get x minus 5. Replace this x by c, you will get c minus 5. Okay, this is the limit part. Now we want to find value of function at point c. Now f of c will be equal to c square
again c square, we will replace this x by c, c square minus 25 by c plus 5. In the numerator you will use the formula of a square minus b square, c plus 5 get cancelled, you will get c minus 5. again this c minus, ये c नहीं है यहाँ पर, ये c मिसप्रिंट है, ये वैल्यू आएगी c minus 5 और ये वैल्यू भी किधर है, c minus 5 implies limit equal, and therefore the function is continuous at all the point of its domain, डोमेन का मतलब इस x इक्वल टू -5 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, उसके ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर जो है आपको -5 आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, we need to prove the function fx equal to x raised to power n is continuous at x equal to n. You are given a positive integer. At this n we need to check now. So what we'll do, first of all we will find the value of this function at point n. अगर हम n पुट करेंगे x के प्लेस पे, you will get n raised to power n, ये वैल्यू है ना। अब हम चेक करते हैं इसकी लिमिट निकालने के लिए x अप्रोचेस टू n, f of n, x के प्लेस पे x की पावर n, तो n के प्लेस पे n की पावर n, you will get n raised to power n. अब ये n की पावर n है, ये भी n की पावर n है, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम, so we can say function is continuous at x equal to n where n is positive integer. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, you are given that a function fx. Now in this question you can see the function जो वैल्यू है, इस फंक्शन दो वैल्यू है, या तो वैल्यू x होगा या 5 होगा। x कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है ना, ये यू कैन सी दिस इज लेस देन 1 एंड 1 का से ग्रेटर अगर हुआ तो वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। इस 0 पे आप चेक करते हैं, पहले 0 पे चेक करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम 0 पे चेक करेंगे क्या इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। 0 क्या है, 1 से लेस है 1 से ग्रेटर, 1 से लेस तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी थी, x। तो अगर 0 पे हम चेक करें fx की वैल्यू होगी x, बट x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, 0 है ना, क्योंकि एट x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0। मोरओवर अगर हम लिमिट x 0 को अप्रोच करें, मतलब 0 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, या तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.1 है ना, या 0 से थोड़ा सा कम -0.9 -0.1, तो थोड़ा सा कम हुआ थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, रहेगा तो 1 से छोटा ही, 0.1 1 से छोटा ही रहेगा ना। अगर 1 से छोटा रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, x, इसलिए हमने यहाँ पर fx के प्लेस पे x यूज़ किया, और x को अगर 0 पुट करेंगे you will get 0. So again you can see this limit and this value they both are equal and therefore the function is continuous at x equal to 0. ठीक है, 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं। For 1 you can see when the function is equal to 1, ये देखो इक्वालिटी यहाँ ऊपर वाली वैल्यू में है, ये ऊपर वाली वैल्यू में 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब जब fx इक्वल टू x है तो अगर x को 1 पुट करेंगे you will get f of 1 इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन सी दिस इज 1। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लें, अब आप कहोगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों ले रहे हैं, हम इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे लिमिट, जैसे पहले 0 में किया, इस ऊपर वाले क्वेश्चन 4 में किया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन देखो, इसको इसमें फंक्शन कैसे डिफाइन है, इस 1 पॉइंट पे फंक्शन अलग अलग डिफाइन है। अगर 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x है, जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। जब ऐसा केस हो तो हमें लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन वेरी कर रहा है, फंक्शन x भी आ सकता है 5 भी आ सकता है। ठीक है, सो हम इस केस में जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से कम, 1 से कम का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब x होगा, है ना, 1 से छोटे का मतलब x होगा। ठीक है, तो देखो x आ गया यहाँ पर, और x अगर 1 पुट करेंगे you will get 1. In right hand limit again you can see when x is 1 positive, 1 positive means 1 plus means 1 से greater, 1 से greater का मतलब fx की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, और अगर fx की वैल्यू 5 होगी, अब यहाँ पर 1 पुट करने के लिए हमारे पास x है ही नहीं, if we don't have any x then it will be straightforward equal to 5.
Okay, but now you can see, is these two value are equal? No, they are not equal. Implies the function is not continuous at x equal to 1. At x equal to 2 you can check in the same way. एक कंक्लूजन और निकलता है यहाँ से, अगर जिस पॉइंट पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों वैल्यू गिवन है, सिर्फ उसी पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, उससे प्रीवियस कोई भी पॉइंट होगा तो फंक्शन आपके जनरली कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो 1 0 पे 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ऑटोमेटिकली, बट 1 पे क्योंकि फंक्शन आपका डबल डबल है, कभी x आ रहा है कभी 5 आ रहा है, तो इस एट दिस पॉइंट हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। So in question number 6 you can see your function is given to you to fx will be 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and it will be 2x minus 3 if x is greater than 2. Okay, so what we will do, अभी मैंने आपको बताया था अगर x की वैल्यू इस 2 पे ही जनरली हम चेक करते हैं, बिकॉज इस 2 के ऊपर ये फंक्शन अलग अलग है ना, एक बार 2x plus 3 हो गया, एक बार 2x minus 3 हो गया। ठीक है, तो जनरली हम 2 पे ही चेक करते हैं, बट हमें ऑब्वियसली शो तो करना पड़ेगा कि इस 2 से छोटा कोई भी वैल्यू अगर लें या इस 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी लें, उस पे भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। सो व्हाट वी विल डू, उसके लिए हम केस कंसीडर करते हैं। योर केस नंबर 1, हम पहले कोई पॉइंट सी कंसीडर कर लेते हैं इस रियल नंबर लाइन के ऊपर, बिकॉज ये फंक्शन जो डिफाइंड है इट डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो केस नंबर 1 क्या था, व्हेन सी इज लेस देन 2, हम क्या करने वाले हैं, हम 2 पे भी चेक करेंगे, 2 से छोटे के लिए भी चेक करेंगे और 2 से बड़े के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, याद रखना जब 2 से लेस लेंगे तो सिंपल फंक्शन की वैल्यू और लिमिट निकालेंगे, अगर हम 2 से ग्रेटर लेंगे तो भी लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू, बट जब 2 पे चेक करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड भी लेंगे, राइट हैंड भी लेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी लेंगे। मतलब सिर्फ 2 वाले केस में हम लेफ्ट और राइट दोनों लेंगे, बाकी दोनों केस में आप डायरेक्ट कर सकते हो लिमिट लगा के, या आप उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी लगा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो इस केस में fx की वैल्यू 2x plus 3 रहेगी। वाई, बिकॉज c इज लेस देन 2, अगर 2 से छोटा हुआ तो fx की वैल्यू कितनी है, 2x plus 3। ओके, सो इसको हमने x की वैल्यू c पुट करें, यू विल गेट 2c plus 3। मोर ओवर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है सी पॉइंट पे, वो भी 2c plus 3 है ना, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल है तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि लिमिट और फंक्शन दोनों की वैल्यू क्या होगी आपस में इक्वल। अगर इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। केस सेकंड ले लेते हैं, व्हेन xc इज वैल्यू जो है, जो पॉइंट है वो 2 से बड़ा पॉइंट है। When point is greater than 2, clearly we will take this 2x minus 3, fx equal to 2x minus 3. If you replace this x by c, you will get 2c minus 3. ठीक है, moreover ये जो फंक्शन की वैल्यू वो भी 2c minus 3 और लिमिट की वैल्यू भी 2c minus 3, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हुई, इक्वल हुई। अगर इक्वल हुई तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। अब हम चेक करेंगे एट पॉइंट 2, इस 2 पे हम दोनों लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी लेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी लेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब 2 से नंबर थोड़ा सा छोटा है, जैसे 1.9, 1.99, तो उस केस में ये x लेस देन 2 होगा, फंक्शन की वैल्यू 2x plus 3 होगी, इसलिए हमने इसको 2x plus 3 लिया। और इस केस में हम x को पुट करेंगे, आपने 11th क्लास में किया था, हम पुट क्या करते हैं इसमें, x इक्वल टू 2 माइनस h पुट करके h को 10 to 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 to 4 plus 3 you will get 7। ओके, you will get 7 आ गया। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा आपका, 2x minus 3, और जब 2x minus 3 होगा, यहाँ पर माइनस कर लेना, ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, माइनस होगा तो यू विल गेट योर वैल्यू 1। क्या ये 1 और 7 आपस में इक्वल है, नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं होगा, क्योंकि लिमिट ही इक्वल नहीं है। अगर लिमिट इक्वल होती हम फिर 2 पे चेक करते,
अब लिमिट ही नहीं है इक्वल, तो हम चेक ही नहीं करेंगे फर्दर और हम यहीं से बोल देंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट योर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x equal to 2 are not equal, therefore f is not continuous at x equal to 2. Okay, so only point of discontinuity is x equal to 2, except x equal to 2 at every point the function is continuous. ठीक, yes. So next question is your question number 7. Find all point of discontinuity of the function f where f is defined by this mod x plus 3 minus 2x and 6x plus 2, and again you are given that point are minus 3 and 3. हम बेसिकली minus 3 और 3 पे ही जनरली चेक करते हैं, बाकी तो पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, उसको हम जनरली फटाफट से केस बना के हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए मैं ये पार्ट छोड़ रहा हूँ, यू हैव टू डू योर सेल्फ। हम पहले x इक्वल टू माइनस 3 पे निकालने वाले हैं, फिर x इक्वल टू c इक्वल टू माइनस 3 पे निकालेंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से आप 3 और माइनस 3 आप चेक कर सकते हो और अपना जो भी रिजल्ट होगा आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, your function is defined by fx equal to mod x by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. Now in this case first of all हम इस mod फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। mod फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस का काम क्या है? मॉडुलस का काम है वैल्यू को प्लस करना। अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी प्लस है तो मॉड लगाने का बेनिफिट नहीं है, वैल्यू प्लस है तो प्लस रहेगी। तो अगर हमारा x इज ग्रेटर देन 0 देन मोड x को हम x लिख सकते हैं। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर x हुआ पॉजिटिव, बट अगर x हुआ नेगेटिव, मोड x तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मोड x का काम कौन करेगा? उस नेगेटिव वैल्यू के बाद एक नेगेटिव और लगा दो, वो नेगेटिव अंदर वाली नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देगा? पॉजिटिव। सो मींस व्हेन x इज नेगेटिव वी विल पुट मोड x इक्वल टू माइनस x। ठीक है, और इस फंक्शन को रीराइट कर लेते हैं और ये फंक्शन हमारा जो होगा रीराइट होने के बाद ये बन जाएगा कुछ इस तरह से माइनस एक्स अपॉन एक्स। व्हेन एक्स गेट कैंसिल यू विल गेट माइनस 1, एक्स गेट कैंसिल यू विल गेट 1। नाउ वी नीड टू चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑलराइट, नंबर लाइन पे डिफाइन है, हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस से मैंने कोई सी पॉइंट कंसीडर किया, उस पर आप चेक कर सकते हो, के कंसीडर कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आप जिस पे चाहे इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। केस 1 लेते हैं, व्हेन द पॉइंट इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होगा, देखो ये लेस देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? -1, ये -1 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह हम निकालते हैं इसकी लिमिट। अब लिमिट मैंने कहा था हम 0 पे चेक करेंगे जब 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे, बट अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? 0 से लेस, फिर हम चेक करेंगे 0 से ग्रेटर, उनमें लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं पड़ती, बट जब 0 पे चेक करना है तो हम लेफ्ट भी लेंगे राइट भी लेंगे। ठीक है, तो अब जब हम 0 पे चेक करेंगे, लेट एक्स अप्रोचेस टू सी वेयर सी इज कोई नेगेटिव वैल्यू है, जैसे -2, -3, -4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी? यहाँ पे -1 रहेगी। ठीक है, सो लिमिट की वैल्यू भी -1, फंक्शन की वैल्यू भी -1, दोनों वैल्यू क्या है? आपस में इक्वल हुई, तो फंक्शन क्या बना? कॉन्टिन्यूस बना ना। व्हेन x इज नेगेटिव इट विल बी कॉन्टिन्यूस। मीन्स जब 0 से छोटा किसी भी पॉइंट पे आप इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, सपोज करो आपने -10 पे चेक करना है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनेगा, -20 पे चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, -30 पे चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं, व्हेन द वैल्यू इज 0। 0 पे क्या लेना था? हम लेफ्ट भी लेंगे राइट भी लेंगे, फंक्शन की वैल्यू भी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन 0 पे वेरी कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लेंगे -1, राइट में लेंगे 1 और 0 पे लेंगे 0। सी दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज -1, राइट हैंड लिमिट 1, दे आर इक्वल? दे आर नॉट इक्वल। मोर ओवर 0 पे तो वैसे 0 है, ये देखो ये रहा, इफ x इक्वल टू 0 इट विल बी 0, तो तीनों वैल्यू अलग अलग आ गई। कॉन्टिन्यूस होगा? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, समझे ना? सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। नाउ उसी फंक्शन को हमें, क्योंकि अभी हमने 0 से लेस किया, 0 से ग्रेटर किया, 0 के इक्वल किया, देखो अभी हमने 0 से
लेस के लिए किया, 0 के इक्वल के लिए किया, नेक्स्ट करते हैं 0 से ग्रेटर के लिए। फंक्शन को पहले दोबारा रिलेट कर लेते हैं। अब हम 0 केस 3 ले लेते हैं। व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 मींस व्हेन यू टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, से यू वांट टू चेक एट पॉइंट 2, यू वांट टू चेक एट पॉइंट 10, यू वांट टू चेक एट पॉइंट 15, मतलब एट x इक्वल टू 15 फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम जनरल सी लेके चल रहे हैं। तो ऑब्वियस है अगर कोई वैल्यू, अगर मैं 15 ही ले लूँ, देखो 15 क्या 0 से ग्रेटर होगा, ऑब्वियस होगा, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर इसकी लिमिट इक्वल है, लिमिट क्या होगी, लिमिट भी इक्वल टू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि f(x) की वैल्यू 1 रहेगा। अब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल, तो क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ना, ठीक है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ऑलराइट, now see question number 10. In question number 10 we need to find all the point of discontinuity where function defined by f(x) is equal to x plus 1 if x is greater than equal to 1 and x square plus 1 if x is less than 1. So आपको अगेन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। ये अंडरस्टूड है कि 1 पे ही हम मोस्टली चेक करेंगे। 1 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप लोगे, से 2, 3, 4, 10, 15, उस पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। और 1 से लेस के लिए भी अगर कोई भी पॉइंट आप 1 से लेस लेते हो, जैसे कि सपोज को 0, -1, -2, -3, उन सभी पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो हमें जस्ट चेक किस पे करना है, 1 पे चेक करना है। बट क्योंकि हमें डिसकंटिन्यूटी निकालनी है तो हम सभी पॉइंट पे लेंगे। तो फर्स्ट केस हम कंसीडर कर सकते हैं व्हेन इट इज लेस देन 1, मतलब 1 से लेस अगर कोई भी पॉइंट हो, सपोज करो 0, -1, -2, उस पॉइंट के लिए जो फंक्शन डिफाइन होगा वो होगा ये x² + 1। अब क्योंकि 1 से छोटे बहुत सारे नंबर हैं, मैंने जनरल क्या पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट c ले लिया। उस c पॉइंट के ऊपर fc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c² + 1। हमने x को c से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर वो वैल्यू सपोज करो -1 है, तो -1 से लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, -1 के ऊपर देखो, वो वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, तो फंक्शन की वैल्यू भी x² + 1 रहेगा। अगर आप 1 से छोटा किसी भी पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सपोज करो 1 से छोटा मैंने -10 पे चेक कर लिया, अब -10 के आप लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, वो 1 से तो छोटा ही रहेगा। अगर 1 से छोटा रहेगा, इस 1 से छोटे सभी के लिए जो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा ये x² + 1, ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में जो फंक्शन होगा हमारा x² + 1 होगा। तो x के प्लेस पर c पुट करेंगे, यू विल गेट c² + 1। क्लियरली ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस इफ x इज लेस देन 1। अब हम चेक करते हैं 1 पे। अगर 1 पे हुआ तब 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे, राइट हैंड लिमिट भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कुछ और है, x + 1 है। 1 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू x² + 1 है, इसीलिए, ठीक है। अब देखो जब x = 1 होगा, देखो अपर वाला फंक्शन होगा ये, यू कैन सी माई कर्सर। सो x = 1 के लिए यहाँ पर 1 + 1 क्या बन जाएगा, आपका 2 बन जाएगा, है ना। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब व्हेन x इज लेस देन 1, जब x 1 से छोटा होगा। x 1 से छोटा होगा तो ये लेंगे x² + 1, ठीक है, ये देखो। और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 1 से ग्रेटर का मतलब लेंगे हम x + 1। एक मिनट, ये गलत लिया हुआ है, यहाँ पर x + 1 आएगा, ये x² नहीं आएगा, ये x + 1 आएगा। और x के प्लेस पे अगर 1 पुट करोगे तो ये 1 + 1 2 ही बनेगा। एक कैलकुलेशन ये लिखने में गलती हो गई है, ठीक है। सो ये यहाँ पर, ये जहाँ मैं कर्सर बता रहा हूँ, ये x है, x आएगा क्योंकि 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू x आनी थी, ठीक है। अब तीनों आपस में इक्वल है तो ये फंक्शन 1 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आपको अब 1 से ग्रेटर के लिए चेक करना है, सपोज करो पॉइंट 10 पे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 10 x = 10 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर 10 से आप लेफ्ट जाओ या 10 से राइट जाओ, 10 से लेफ्ट जाओगे 9.9, राइट जाओगे तो 10.1, एट 10 चेक करोगे 10 होगा। ये तीनों वैल्यू 1 से तो काफ़ी बड़ी हैं, तो उन तीनों के लिए फंक्शन के लिए तो x + 1 ही रहेगी। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या रहेगी, c + 1। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस
बन जाएगा। क्लियर हुआ? सो इन दिस वे वी कैन चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। ऑलराइट, हेंस द गिवन फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सभी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, आपको वही 3 केस हम लेके चलेंगे। हम कोई पॉइंट सी कंसीडर करेंगे। केस 1, व्हेन सी इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब आप कोई पॉइंट दिमाग में कंसीडर किया करो, से x इक्वल टू मैंने ले लिया -10। अब -10 पे आपको चेक करना है, तो फंक्शन की वैल्यू x + 5 ही रहेगी, चाहे आप 10 पे चेक करो या 10 से लेफ्ट हैंड जाओ या 10 से राइट पे जाओ। ठीक है, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव मतलब लिमिट और फंक्शन की वैल्यू वो क्या रहेगी आपकी x + 5 ही रहेगी। जब x को c पुट करेंगे, ये भी c + 5, ये भी c + 5, तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप केस लेके चलो सेकंड केस 1 पे लेफ्ट का मतलब 1 से छोटा तो x + 5, 1 से बड़ा तो x - 5। इन दोनों पे आप x की वैल्यू 1 1 पुट करके चेक करो। देखो लेफ्ट लिमिट निकलती है 6, राइट लिमिट निकलती है -4। इक्वल है? नहीं है। अब ऑब्वियस है, फंक्शन अगर वैल्यू इक्वल ही नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? क्लियरली इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 1, क्योंकि एक वैल्यू 6 है, एक वैल्यू -4 है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। केस 1 था जब हमने 1 से छोटा नंबर लिया। केस 2 था व्हेन x इज इक्वल टू 1। केस 3 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। जब x इज ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? अब इससे पहले आप 1 से बड़ा कोई नंबर सोच लो दिमाग में, से मैंने 1 से बड़ा नंबर से 10 सपोज कर लिया। ठीक है, अब अगर आप 10 सपोज करते हो कोई नंबर, सो उस पे आप 10 से लेफ्ट जाओ राइट जाओ 10 पे चेक करो, फंक्शन वैल्यू कितनी रहेगी? वो c - 5 ही रहने वाली है। यहाँ देखो x - 5, तो इसका मतलब लिमिट की वैल्यू भी c - 5, फंक्शन की वैल्यू c - 5, तो क्या बनेगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन। हेंस दिस फंक्शन हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कौन सा? ये 1, एक ही पॉइंट और वो कौन सा है? x = 1 ही है जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। उसके अलावा ये फंक्शन सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। अब ये क्वेश्चन भी ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपके केस थोड़े ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि हम पहले 0 से, अब बेसिकली 0 पे चेक करना, 1 पे चेक करना, बट 0 से छोटा कोई नंबर होगा तो उसको हम जैसे हम c कंसिडर करके करते हैं, तो वो वाला केस हम करके रहेंगे। देखो मैंने c कंसिडर किया, उस पे दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कर दिया। केस 2 कौन सा होगा? व्हेन c इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पे दोनों लेंगे हम, लेफ्ट भी लेंगे राइट भी लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से लेस के लिए फंक्शन अलग है, ग्रेटर के लिए फंक्शन अलग है। हम कब लेते हैं? जब फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो 0 पे चेक किया, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर की, वो 2x होगा। राइट हैंड लिमिट कंसिडर की, वो 0 डायरेक्ट बन जाएगा, है ना? 0 से ग्रेटर के लिए 0 बन जाएगा, 0 से लेस के लिए 2x बनना था। अब क्योंकि x के लिए 0 ही पुट करेंगे, क्योंकि हम 0 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं एट c = 0, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, तीनों वैल्यू, तो ये फंक्शन क्या होगा? दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और अब चेक करते हैं केस थर्ड कौन सा? जब x 0 से ग्रेटर होगा। बट नाउ 0 से ग्रेटर तो हम ले लेंगे, बट हमें एक कंडीशन और गिवन है कि वो 1 से लेस होना चाहिए, तो हम ये वाला केस कंसिडर करते हैं व्हेन द नंबर लाइज बिटवीन 0 and 1। जब 0 and 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, अब 0 से 1 के लिए अगर फंक्शन वैल्यू 0 रहेगी, लिमिट भी अगर निकालोगे तो वो भी तो 0 रहेगा, है ना? c 0 1 के बीच में लाई करता है, मतलब से मैं पॉइंट चेक कर रहा हूँ से 0.5। अब 0.5 से थोड़ा सा लेफ्ट जाओ तो 0.4 होगा, राइट जाओगे तो 0.6 होगा। उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना, तो इसलिए उस फंक्शन की वैल्यू 0, x की वैल्यू कुछ पुट करो ना करो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, अब एक केस और है, अब हम चेक करेंगे 1 पे। अभी हमने 1 पे चेक नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये c वाला केस चेक किया, अब 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो, पहले मैं फंक्शन को रीराइट कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन था, अब इस फंक्शन के बाद हमारा जो केस 4 बनेगा वो बनेगा व्हेन c इज इक्वल टू 1। 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे राइट भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 1 से लेस के लिए भी फंक्शन अलग है और ग्रेटर के लिए फंक्शन अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में
जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू लेंगे 0, राइट लिमिट लेंगे तो लेंगे 4x, बट क्योंकि x की वैल्यू 1 है पुट करेंगे यू विल गेट 4। अब क्या 0 4 के इक्वल है? नहीं है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉइंट 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। It is observed that the left hand and right hand limit of f at x equal to 1 are not equal. Therefore, this function is not continuous at x equal to 1. ठीक है, अब ये हमने 0 से छोटा कोई भी नंबर चेक कर लिया, 0 पे भी चेक कर लिया, 1 पे भी चेक कर लिया। अब 1 से बड़ा कोई और नंबर हुआ तो उस पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर ये ग्रेटर देन 1 आएगा क्योंकि 1 से लेस हम चेक कर चुके हैं ना ऑलरेडी केस थर्ड के अंदर। सो इसके अंदर आपकी 4x आएगा, x की वैल्यू c पुट करोगे यू विल गेट 4c। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, किस पे? अगर वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1 हो। क्लियर हो गया? तो अब आप देखो 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, 0 से छोटे और 1 से बड़े उन पे कॉन्टिन्यूस था। ठीक है, तो x is not function is not continuous at x equal to 1 और x equal to 1 is the only point of discontinuity. Next, see question number 17. In question number 17, you are given that a function is given to you, fx is equal to ax plus 1 and ये bx plus 3 और आपको a और b में रिलेशनशिप निकालनी है और गिवन क्या है? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगी। अब दोनों को इक्वल कर देंगे। हम क्या करेंगे? दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? हमने अगर एफ ऑफ, ये तो कंडीशन होगी कि जो लिमिट होगी ये 3 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव और f3 तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी? इक्वल। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। 3 नेगेटिव का मतलब 3 से कम, 3 से कम का मतलब x लेस देन 3 means function will be ax plus 1. So ax plus 1 में x के प्लेस में we will put 3, you will get 3a plus 1. जनरली हम इसको पुट करेंगे we will put 3 minus h such that h tends to 0. वो h को 0 पुट करोगे you will get 3a plus 1, है ना? अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब x is greater than 3 क्योंकि 3 प्लस जाएगा, तो फंक्शन के लिए क्या होगी? ये bx plus 3 और अब x को पुट करो 3 plus h such that h tend to 0, you will get 3b plus 3। अब क्या कंडीशन गिवन थी आपको? कंडीशन वाज गिवन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो दोनों वैल्यू को हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 अगर दोनों को तीनों को आपस में इक्वल करो you will get this thing। अब ये कैसे आया? f of 3 जब 3 के इक्वल होगा तो वैल्यू ax plus 1 होगा, बट x की वैल्यू कितनी ली हमने? 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3a plus 1। इनमें से आप कोई भी दो रिलेशन ले लो, आप लास्ट की दो रिलेशन ले लो, इस 1 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर you will get 2 और 3 को शिफ्ट करेंगे you will get a equal to b plus 2 by 3 and this is your required relationship between a and this is your required relationship between a and ओके। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी? इक्वल। क्वेश्चन नंबर 18, we need to find the value of lambda. We need to find lambda and you are given that this function is continuous at x equal to 0. अगर 0 पे continuous है, अभी हमने किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एट द फंक्शन द वैल्यू विल बी इक्वल। ठीक है, ये 0 पॉजिटिव आएगा, ये मिसप्रिंट हर जगह हो गया। ये 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव एंड f of 0। ठीक है, तो 0 नेगेटिव पे अब 0 से लेस के लिए फंक्शन ये लेंगे। अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पे पुट करें 0 माइनस h, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना रहे, देखो ये मैंने क्या लिया? ये मैंने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मैंने लिया राइट हैंड लिमिट। इस केस में थोड़ा सा इसको लिखने में थोड़ी गलती है, इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन ना होना। अब देखो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, ये बनेगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, और ये बनेगा 4 इंटू 0 प्लस 1, ये यहाँ लिख दिया 4 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, और ये जो लैम्डा के साथ वैल्यू देखो ये बनेगा 0 और ये इक्वल टू वाली चीज ये बन जाएगा 4 इंटू 0 0 प्लस 1 1। ये तो आ गया 0, ये आया 1। अब देखो क्या 0 इक्वल टू 1 होगा? विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अब ये लैम्डा पे डिपेंड क्या करेगा? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन
किसी भी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बट अगर इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, अगर 1 हम लें, अब 1 तो 0 से बड़ा है, ठीक है, उस 1 पे हमें चेक करना है। उस 1 की अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो 0.9 होगा, राइट लेंगे तो 1.1 होगा। वो 0.9 और 1.1 दोनों वैल्यू 0 से तो बड़ी ही हैं, तो दोनों के लिए फंक्शन तो 4x प्लस 1 ही रहेगा। अगर दोनों के लिए फंक्शन 4x प्लस 1 रहेगा तो हम अगर वैल्यू चेक करें 1 पे तो ये वैल्यू आपस में इक्वल आएगी, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब ये लैम्डा तो लेस देन वाली कंडीशन में था, अब लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करता ये, आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये फंक्शन क्या रहेगा आपका, कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, यू आर गिवन दिस जेंट फंक्शन। अब आपको जेंट फंक्शन कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, तो जेंट फंक्शन मैं थोड़ा रीराइट कर लेता हूँ। जेंट फंक्शन को कैसे लिखते हैं? जेंट फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कोई भी वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर गिवन है, जैसे सपोज करो 5.1 दे दिया, अब उस 5.1 से छोटी इंटीजर कौन कौन सी है? 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 चलता रहेगा। 5.1 से छोटी वैल्यू 5 से स्टार्ट हो जाएगी, 5, 4, 3, 2, 1। उन सभी 5, 4, 3, 2, 1 में सबसे बड़ा कौन? 5। तो जो 5 होगा वो इस 5.1 की वैल्यू होगी, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो देखो, अगर हम हमारा वैल्यू वो अगर n कोई इंटीजर है, अगर मैं देखो 5 में 5 प्लस 0.1 करूंगा 5.1 होगा, और 5.1 के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 5। बट अगर मैं 5 से थोड़ा सा कम कर दूं, 4.9 कर दें, 4.9 से लेस इंटीजर 4, 3, 2, 1 होगा, और सबसे बड़ा 4 बन जाएगा, 5 नहीं बनेगा। हमने 5 से थोड़ा सा माइनस किया, बट वो 4 पॉइंट समथिंग चला गया, और 4 पॉइंट समथिंग का जिंट जो होगा वो 4 बन जाएगा। समझ आया? मतलब थोड़ा सा अगर आपने n से इंटीजर्स थोड़ा सा माइनस किया तो 1 माइनस हो जाएगा नंबर में से, अगर थोड़ा प्लस कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। ग्राफ आपको याद हो, ग्राफ कैसा था इसका? ये स्टेप्स वाला ग्राफ था इसका, 11th क्लास में आपने किया है इसके बारे में, ठीक है। तो हम अब इसको चेक करते हैं, किसी n इंटीजर के ऊपर किसी n इंटीग्रल पॉइंट को हम ले लेते हैं। अब अगर n इंटीजर हुआ, जैसे 2 का जेंट कितना होगा? 2 रहेगा, 3 का जेंट 3 रहेगा, क्योंकि g ऑलरेडी वो इंटीजर इटसेल्फ है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब हम चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड टू n नेगेटिव। अब ये देखो n नेगेटिव के लिए f इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है? n-1 जेंट फंक्शन की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? n-1, और n और n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखो ध्यान से आप, n पॉजिटिव, अब जब n पॉजिटिव होगा तो जेंट फंक्शन की वैल्यू तो n ही रहेगा, तो यहाँ पर लिमिट को अलग अलग किया, सेपरेट किया, इसकी वैल्यू n, इसकी वैल्यू n, यू विल गेट 0। अब ये 0 1 के इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल टू n आर नॉट इक्वल, देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। देयरफॉर दिस फंक्शन g जो क्वेश्चन में गिवन था, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीजर्स को ही हम इंटीग्रल पॉइंट बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, इसके लिए आपको एक रिजल्ट आपको याद रखना होगा। अगर हमारा फंक्शन g और h दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, g और h, तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका माइनस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इफ g एंड h आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन और उनका मल्टीप्लिकेशन ऑल आर कॉन्टिन्यूअस। तो इन शॉर्ट मुझे सिर्फ साइन को प्रूव करना है ये कॉन्टिन्यूअस है, कोस को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, और बाद में बोल देंगे अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो प्लस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये b पार्ट वाला भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और इनटू वाला भी पार्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम अब gx और hx कंसीडर कर लिया, इस gx को हम चेक करते हैं, ठीक है।
अब ऑब्वियस है gx तो ऑब्वियस साइन, वैसे भी ग्राफ चेक करो ग्राफ इसका कॉन्टिन्यूस ही रहता है, बट फिर भी हम इसको मैथमेटिकल प्रूव करेंगे। तो हम gx के प्लेस पे पुट करेंगे c प्लस एच सच दैट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये क्या बनेगा, लिमिट x के प्लेस पे पुट किया c प्लस एच टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b, h की वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 बनेगा, तो ये सेकंड टर्म 0 बन जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 और ये बन जाएगा आपका साइन c प्लस 0 इक्वल टू साइन c। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर c डायरेक्ट पुट कर दें तो वो क्या बनेगा, वो भी साइन c बनेगा, है ना। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये g क्या फंक्शन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली हम cos को चेक कर लेंगे, hx cos लिया, x को पुट कर लेंगे। ऑब्वियस है cos का ग्राफ भी देखोगे, cos का ग्राफ ऊपर थोड़ा स्टार्ट होता है, वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, स्टिल वी विल पुट x इक्वल टू c प्लस h सच दैट h टेंड्स टू 0। x के c के प्लेस पे हम hc की वैल्यू निकाल ली है, तो हमने ये जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अब लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिट की वैल्यू निकालने के बाद इट विल बी cos c प्लस h, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, लिमिट को सेपरेट किया, h की वैल्यू पुट की, साइन 0 0 होगा, सेकेंड टर्म 0 बन जाएगी और फर्स्ट टर्म बन जाएगा cos c। ठीक है, अब ये cos c और फंक्शन की वैल्यू भी cos, इसका मतलब ये जो फंक्शन है क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये भी कॉन्टिन्यूअस, g भी कॉन्टिन्यूअस, तो उनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, माइनस भी कॉन्टिन्यूअस होगा और मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर ना। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं whether the given function is continuous और ठीक है। अब कोसाइन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोसिकेंट सीकेंट है, हम इसमें से मैं आपको कोसिकेंट बता देता हूँ। आपको इसके लिए पता होना चाहिए जो डिनोमिनेटर है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो वैल्यू क्या बन जाती है, नॉट डिफाइंड बन जाती है। ठीक है, सो अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने साइन को प्रूव किया, साइन इज कॉन्टिन्यूअस एंड कोस इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर साइन कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी कॉन्टिन्यूअस होता है, याद रखना। देखो इफ g and h are two continuous तो 1/g भी continuous होगा, 1/h भी continuous होगा, but g and h cannot be equal to 0। तो साइन अगर continuous है तो साइन का रेसिप्रोकल भी continuous होगा, बट साइन का रेसिप्रोकल अगर continuous करेंगे तो साइन को जब 0 होता है, when sin is equal to 0, उस वैल्यू को हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब उस एक्सेप्ट दैट वैल्यू एट विच साइन इज इक्वल टू 0 एट ऑल द पॉइंट इट विल बी कॉन्टिन्यूअस, है ना। कोसिकेंट इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कोसिकेंट x इक्वल टू 1 अपॉन साइन x विल बी कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट दैट पॉइंट वेयर साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन x इज इक्वल टू n पाई। सो इसका मतलब कोसिकेंट x इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो हमने उसी वैल्यू को लिख लिया। अब सिमिलरली यू कैन चेक फॉर सीकेंट कोटेंजेंट, वो आप चेक कर सकते हो, दैट्स योर वर्क। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको ये गिवन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अगर आप ध्यान दो, मैं 0 पे चेक करूंगा, इस 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जब x 0 होगा तो डायरेक्ट 0 बन गया, ये वाला देखो ये 0 रहा। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट में 0 पॉजिटिव। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर यू कैन सी x टेंड टू 0 नेगेटिव fx, x लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx की वैल्यू x स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 प्लस x, x को पुट करेंगे 0 माइनस h सच दैट h टेंड्स टू 0। व्हेन h टेंड्स टू 0 देन ये 0 माइनस h का होल स्क्वायर और x को रिप्लेस कर दिया 0 माइनस h के साथ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली है, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, और ये साइन ऑफ 1/1 0 माइनस h ये बन जाएगा साइन ऑफ 1 माइनस h। लिमिट को सेपरेट करेंगे, जब लिमिट को सेपरेट करेंगे इस h स्क्वायर के तो वैल्यू 0 बन जाएगी, और साइन वाले में क्या बन जाएगा 1/0, और वो बन जाएगा इन्फिनिटी।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम साइन वाले में अभी नहीं पुट करेंगे, एक स्टेप के बाद पुट करने के लिए कोशिश करेंगे। पहले हम बाहर वाले में 0 पुट कर लेते हैं। जब हम h को 0 बना लेंगे, ये बनेगा 0 इंटू दिस थिंग। अब 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। हम h को साइन के अंदर जो h है वहां पर 0 पुट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, साइन ऑफ एनी वैल्यू। अब साइन के अंदर कोई भी वैल्यू है, साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 के बीच में लाई करती है। तो -1 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लाई करेगी, ऑब्वियस है वो इन्फिनिटी तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। समझे? तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू हो जाएगी 0। राइट हैंड लिमिट में सिर्फ यहाँ पर जो हमने 0 -h किया ना, इसको 0 + h पुट कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। लास्ट में आके यहाँ पर ये 1/+h हो जाएगा, वो भी आ जाएगा 0, दोनों वैल्यू इक्वल, सो वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है एट x = π/2। सो व्हाट वी विल डू, हम लिमिट की वैल्यू 3 इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब π/2 पे जब हमने निकालनी है वैल्यू, कितनी होगी इसकी वैल्यू, π/2 पे हो जाएगी 3। और जब लिमिट होगा, लिमिट x टेंड टू π/2, तो फंक्शन रहेगा k cos x / π-2x। अब ऐसे केस में सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, x को पुट कर लेते हैं π/2 +h या -h, ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सच दैट h टेंड टू 0, x की वैल्यू पुट करो, cos of π/2 + h अपॉन दिस थिंग। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट -π -4 -h। ठीक है, और ऊपर जो होगा cos π/2 + थीटा चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा -sin h। ठीक है, अपॉन में क्या बचा, ये -2 × h -2h, ये -2 माइनस गेट कैंसल, और ये 2 आ जाएगा बाहर। अब sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ गया सारी वैल्यू, ये आ गई k/2। ठीक, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, तो ये जो 3 है फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल, है ना। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 6, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट k = 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। आपको वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b एंड यू आर गिवन दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगेन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है और आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट वी विल डू, अगेन वही हम 2 से लेफ्ट 2 से राइट, 10 से लेफ्ट 10 से राइट, सारी वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, तो हम वही चीज लेने वाले हैं इसके अंदर। हम 2 और 10 के ऊपर पहले हम 2 कर लेते हैं। 2 पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 रहेगा 2 से लेस के लिए, इक्वल 2 के लिए भी 5 रहेगा, बट जब 2 को अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड इट विल बी ax + 1 ax + b। ठीक है, अब इसमें से दोनों को आप ये दो ले लेते हैं, 5 तो एक ही बात है, कोई भी ले लो, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब हम लेंगे फॉर x = 10, अगर 10 से लेफ्ट होगा तो ax + b, 10 के इक्वल 21, 10 से ग्रेटर तो भी 21। ठीक है, ये देखो 10 के इक्वल भी 21, 10 से ग्रेटर भी 21, क्योंकि 10 पॉजिटिव था और 10 नेगेटिव के लिए ax + b। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ये इक्वलिटी है, ये वाला इक्वल था ना, ये ax + b = 2, यहाँ इक्वल आएगा, तो इक्वल आएगा तो 21 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यू विल गेट वैल्यू ऑफ a = 2, a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, यू विल गेट वैल्यू ऑफ b। सो वैल्यू b कितनी आ जाएगी आपकी 1। ये आपकी वैल्यू है a और b की। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको कंपोजिट फंक्शन पता होना चाहिए। अगर हमारा फंक्शन कोई f और g, दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो f of g भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर f एंड g कॉन्टिन्यूअस है तो f of g भी कॉन्टिन्यूअस होगा। g एंड h अगर कॉन्टिन्यूअस है, जैसे यहाँ पर मैंने g कंसिडर किया cos x, h कंसिडर किया x², तो अगर मैं इसमें g of h लूंगा, ठीक है, तो हमारे पास आना चाहिए cos x²।
अगर g भी कॉन्टिन्यूस, h भी कॉन्टिन्यूस, तो cos ऑफ x स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। हम पहले चेक कर लेते हैं कि g ऑफ h से ये बनता है कि नहीं बनता। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में किया हुआ है, तो ये ऑब्वियस है बनता है, ठीक है। अब ऑब्वियस है जो cos था, cos का तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है प्रूफ कि ये जो cos फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, ठीक है। बचा x स्क्वायर को हम प्रूव कर लेते हैं। x स्क्वायर के लिए हमने hx इक्वल टू x स्क्वायर लिया। किसी भी पॉइंट पे अगर ये डिफाइन करेंगे तो ये k ले लो, c ले लो, आपकी मर्जी है, मैंने k ले लिया। इसके लिए k स्क्वायर होगी, जब लिमिट अप्रोच करेगी तो भी वैल्यू k स्क्वायर होगी, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन आपका ये भी कॉन्टिन्यूस g, h भी कॉन्टिन्यूस, तो g ऑफ EH भी क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। So we can say this function cos of x square is also continuous function। 24th onward आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं जहां पर आपको g और h को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। जब क्वेश्चन में ऐसा कॉम्प्लिकेशन मिले जैसे cos of sin x, sin of sin x, sin of x square, sin of e raised to power x, cos of log x, मतलब इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिले तो इन दैट केस आपको इस तरह से कंपोजिट फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे ये आपको प्रूव करना है, तो इसमें मैंने g और h कंसीडर किया। इस g और h को मैं अलग अलग प्रूव करूंगा कि दे आर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर g को कॉन्टिन्यूस प्रूव किया, ठीक। केस 1 लेके केस 2 लेके चलेंगे, वहां पर भी हम g को कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे क्योंकि g क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। अब केस 3 ले लिया, उसमें भी हम मोड को ही, अभी g को ही प्रूव कर रहे हैं, अभी सारा काम ये g के लिए चल रहा है, ठीक है। इस g के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया। अब देखो मैंने क्या प्रूव किया, क्योंकि ये फंक्शन जो मोड है ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उस वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो हमारे लिए मैटर करते हैं कि हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, नेगेटिव पुट कर रहे हैं, पॉजिटिव पुट कर रहे हैं या जीरो पुट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने तीनों केस लिए, व्हेन नेगेटिव, व्हेन इट इज पॉजिटिव, व्हेन इट इज इक्वल टू जीरो, और इन तीनों केस के लिए हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव किया है। सॉल्यूशन आप देख सकते हो, उन बाकी क्वेश्चन इसी तरह ही है। सिमिलरली अगर हम sin x को चेक करें, sin x के अंदर भी हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है, इसको खैर इसको हम नहीं करेंगे प्रूव, हमने पहले प्रूव कर चुके हैं gx sin x इक्वल कॉन्टिन्यूस। अब दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस, तो दोनों का कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं, ठीक। और आगे जो फर्दर क्वेश्चन होंगे वो भी सेम तरीके से ही आपको करने होंगे। कोई डाउट्स है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, काइंडली सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।